تو پاکستان تحریک انصاف نے 27 مارچ کے جلسے کی جگہ تبدیل کر لی ہے۔ پی ٹی آئی اب پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ جلسے کے انتظامات اور سیکیورٹی کے لیے انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے۔ حکومت نے اس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جلسے کا اعلان کیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا، پی ٹی آئی نے اب جلسے کی جگہ تبدیل کر لی ہے؟ جی بالکل، 27 مارچ کو جو ممکنہ طور پر حکومت اور اپوزیشن کے کارکنان میں جو تصادم کا ایک امکان تھا، وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افراد اسلام آباد میں لائیں گے اور ایک بڑا اجتماع ہوگا جس سے وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ تاریخی خطاب کریں گے۔ پہلے اسی جگہ پر مقام پر جو ہے یہ دھرنے کا جو ہے جو جلسے کا انعقاد کرنا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کی ہی جانب سے درخواست دے دی گئی ہے ضلع انتظامیہ کو، جس میں یہ وینیو چینج ہو کر پریڈ گراؤنڈ منتقل ہو گیا ہے۔ رینجرز کے چاکو چوبند جو یہاں پر جو جوان ہیں وہ یہاں پر الرٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے ہے۔ اس وقت بھی ڈی چوک جو ہے وہ اس اعلان کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیریئرز خاردار تاریں لگی ہیں۔ اپوزیشن اب کہاں پہ کرتی ہے، لیکن ریڈ زون میں جو ہے وہ حکومت اب نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپوزیشن کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ شاہراہ دستور پر آ کر جو ہے وہ اویس کیانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں نے شاہراہ دستور پر ہی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے رکاوٹ ڈالی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں عثمان جاوید سے۔ عثمان، بتائیے گا کہ اپوزیشن شاہراہ دستور پر ہی جلسہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ جی بالکل، اپوزیشن کی جانب سے اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر 27 مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری جو سیکرٹری جنرل ہیں جے یو آئی کے، ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر 27 مارچ کو اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہوگا، اور اگر اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے مزید اپنے اعلان میں کہا کہ 24 مارچ سے استقبالیہ کیمپ بھی لگا دیے جائیں گے۔ 12 کو روات ٹی چوک اور 26 نمبر چنگی پر جے یو آئی کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے جلسے کے حوالے سے H9 کی جگہ کی تجویز دی، لیکن اپوزیشن نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد شاہراہ دستور پر جلسہ کرنے کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ 21 کی بجائے 25 مارچ کو اجلاس بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر نے آئین شکنی کی۔ اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ وقت پر اجلاس بلاتے؟ شہباز شریف کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا OIC اجلاس کے لیے لانگ مارچ ملتوی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری بولے حکومت تحریک عدم اعتماد سے بھاگ رہی ہے۔ اسپیکر نے 14 روز میں اجلاس نہ بلا کر پہلی غلطی کر لی۔ اسپیکر سے کہنا چاہوں گا حکمران آپ کو پھنسائیں گے۔ ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے۔ اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ، اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع ملے۔ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کریں، یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ملک میں جمہوری ماحول نہیں ہے، اس فتنے سے عوام کی جان چھڑانے تک جد و جہد جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے۔ نہ یہاں پر جمہوریت ہے، نہ کوئی جمہوری ماحول ہے، اور ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں، بھوک اور پیاس کو عام کر دیں، عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکیں،
इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। इनकी कौन सी बात में तजाद नहीं है, आप इनकी पूरी हिस्ट्री को देख लें, पूरी हिस्ट्री तजादात से भरी हुई है। आज एक बात कहते हैं, कल फिर उसके खिलाफ बात कहते हैं। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, अदालत इसलिए आए कि तशरीह कर दें क्या वोट बेचने की इजाज़त है। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने कोई बंदा तोड़ा, ना ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये केस की हेयरिंग की है। आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा फंडामेंटल बुनियादी एक आइन का हिस्सा है। जिस तरीके से लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, जिस तरीके से लोटा करेसी को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई वो आपके सामने है। और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी के अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनके जो भी जवाबात आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं न्यूट्रल के लफ्ज़ ने एक शख्स की हवा निकाल दी, आपकी जमात बिखर गई। ये हाल तो किसी तांगा पार्टी का नहीं होता। 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख बंदे निकालने चले हैं। नवाज शरीफ ने बाहर से बैठकर आपको घर में घुस कर मारा। अवाम ने इमरान खान को रेड कार्ड दिखा दिया, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ये धमकी अपोजिशन को नहीं दी गई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। आजकल ये जो लफ्ज़ है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है और इस एक लफ्ज़ ने जब से न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज़ ने आपकी पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले हैं। अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी है, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियां नहीं दी कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती। लाहौर में तरीन ग्रुप के मेंबरान की हुकूमत से राब्ता मुहिम का सिलसिला जारी है। तरीन ग्रुप के 5 मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। ज़राए का दावा है सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल, रफ़ाकत अली गिलानी, लाला ताहिर रंधावा समेत दीगर अरकान ने ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तरीन ग्रुप के अरकान ने वज़ीर आला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला की जानिब से नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और टॉप स्टोरी। बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात ने पंजाब हुकूमत को परेशान कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात पर 9 अरब 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने 7 अरब 21 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। पंजाब ने वफाक से 50% फंड्स देने की दरख्वास्त की है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताएगा इस सिलसिले में क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन का सूबाई ऑफिस है, उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को एक मरासला लिखा गया कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से उनको 9 अरब रुपए का मजमूई तौर पर बजट दिया जाए। अब इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाकायदा एक ब्रेकअप मांगा गया कि 9 अरब 59 करोड़ रुपए का बजट किसके लिए मांगा जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर पर एक उनकी तफसील जो है वो उनको फ्राहम की जाए। तो उस पर उन्होंने बताया कि 9 अरब रुपए का बजट, इसमें से
7 अरब तो पंजाब का जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है उनकी तरफ से मांगा गया, और 2 अरब रुपये से ज़्यादा का बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिमांड जो है उनकी की गई। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से रब्ता कर रही है ताकि 50% बजट जो है वो वफाकी हुकूमत उनको दे, और 50% बजट पंजाब हुकूमत देखकर पंजाब में जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो उनका इनकाद जो है वो किया जाएगा। अब क्योंकि बजट मज़ीद बड़ा है तो इससे पहले बजट कम अखराजात आए थे, लेकिन अब 9 अरब रुपये के अखराजात का तखमीना लगाया गया, और इसी वजह से पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से मदद ले रही है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 48वां 2 रोज़ा इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। मजीद बता रहे हैं वकास अजीम। जी वकास, आगाह कीजिएगा। ताउन तंजीम OIC का 2 रोज़ा इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, जिसमें इजलास में शिरकत के लिए जो मेहमानों की आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और इनसे पहले इस्लामी ताउन तंजीम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इसके अलावा तुर्की, बांग्लादेश के अलावा लीबिया, सूडान और चाड के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। OIC इजलास के लिए जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 2 रोज़ा इजलास में आलमी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, और इसमें कश्मीर और अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो करारदादें मंजूर की गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक जो नुकात सामने आए हैं, जो करारदादें सामने आए हैं, उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा, और माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक भी जो शुरका हैं वो इस बहस में शिरकत करेंगे। जो मुबस्सरीन हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और तकरीबन 675 के करीब जो मुबस्सरीन हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करने वाले जो मेहमान हैं ये 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की जो परेड होगी उसमें भी शिरकत करेंगे, और इस परेड का भी मुज़ाहरा करेंगे। जी। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हमनसब का खैर मकदम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई, जिसमें चीन के स्टेट काउंसलर ने भी शिरकत की। मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन, यूक्रेन में जारी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। ISP के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हर शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। मुलाकात में मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की और सिफारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। बढ़ते डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स पाश कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 68 पैसे बढ़कर 181 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 80 पैसे महंगा हुआ और 182 रुपये 50 पैसे के रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।